امریکی سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف اقدامات کالعدم قرار دے دیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف عائد کرتے وقت اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ ٹرمپ کے فیصلے سے عالمی تجارت بری طرح متاثر ہوئی۔ امریکی عدالت کا فیصلے میں ریمارکس، کہا انٹرنیشنل ایمرجنسی اکنامک پاورز ایکٹ صدر کو ٹیرف عائد کرنے کا اختیار فراہم نہیں کرتا۔ ماہرین کی طرف سے حالیہ فیصلہ ٹرمپ کی معاشی پالیسی کے لیے ایک بڑا عدالتی دھچکا قرار۔ کہا ٹیرف ٹرمپ کے اقتصادی ایجنڈے کا ایک اہم ہتھیار سمجھے جاتے تھے۔ صہیونی حکومت کی اسلام دشمنی تاحال برقرار، غزہ امن معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اسرائیل نے رمضان کے پہلے جمعے فلسطینیوں کا مسجد اقصی میں داخلہ محدود کر دیا، صرف بچوں اور بوڑھوں کو داخلے کی مشروط اجازت۔ مقبوضہ بیت المقدس میں ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے موقع پر اسرائیل نے فلسطینیوں کی مسجد اقصی کے احاطے تک رسائی سختی سے محدود کر دی۔ عرب میڈیا کی تصدیق، رام اللہ کے قریب کلندیا چیک پوائنٹ پر سینکڑوں فلسطینی طویل قطاروں میں کھڑے یروشلم میں داخلے کی اجازت کے منتظر۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے چیف ایگزیکٹو آفیسر انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کی ملاقات، پاکستان اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی معاشی شراکت داری پر زور۔ وزیراعظم نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان معاشی شراکت داری، نجی شعبے کے منصوبوں اور روزگار کے مواقع کے فروغ میں ڈی ایف سی کے کردار کو سراہا۔ توانائی، کان کنی، زراعت اور آئی ٹی میں سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانے کی دعوت۔ ڈی ایف سی کے سی ای اور بلیک نے پاکستان میں سرمایہ کاری میں اضافے میں دلچسپی ظاہر کی۔ وزیراعظم نے ڈی ایف سی کو جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات، غزہ میں امن منصوبے پر عمل درآمد کے لیے بورڈ آف پیس کے ساتھ کام کرنے کی عزم کا اعادہ کیا۔ دو طرفہ تجارت، معاشی سرگرمیوں میں اضافے، دہشت گردی کے خلاف تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی، لکھا کہ ملاقات میں اسٹریٹجک تعلقات، کرٹیکل منرلز ڈیولپمنٹ اور انسداد، دہشت گردی کے امور پر بات ہوئی۔ امریکی صدر کی جانب سے غزہ امن منصوبے میں پاکستان کی معاونت اور بورڈ آف پیس میں شمولیت پر پاکستان کو سراہتے ہوئے۔ واشنگٹن میں بورڈ آف پیس اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں، عالمی اور علاقائی امور پر گفتگو، ملاقاتوں میں مسکراہٹوں کا تبادلہ، غیر رسمی گرم جوشی دیکھنے میں آئی۔ غیر رسمی ملاقات کرنے والوں میں بحرین کے شاہ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ، آذربائیجان کے صدر الہام علیوف، ازبکستان کے صدر شوکت مرزویوف، قازقستان کے صدر قاسم جومارت کو کائف اور انڈونیشیا کے صدر ابوا سوبانتو شامل۔ امریکی صدر کی تعریف سے عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ امریکہ میں منعقدہ بورڈ آف پیس اجلاس کے دوران پاکستان کو نمایاں پذیرائی اور احترام حاصل ہوا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کردار کو سراہا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے واشنگٹن ڈی سی سے ویڈیو بیان جاری کر دیا، کہا کہ امریکی صدر اور وزیر اعظم کے درمیان مثبت روابط اور خوشگوار ملاقاتوں سے پاکستان کی سفارتی پوزیشن مزید مستحکم ہوئی ہے۔ پاکستان کی موجودہ خارجہ پالیسی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ 6 فار جسٹس کا بورڈ آف پیس کے لیے $1 بلین دینے کا اعلان۔ واشنگٹن میں سینکڑوں سکھ برادری کے ارکان جمع، صدر ٹرمپ کے سامنے خالصتان ریفرنڈم کا مطالبہ۔ 6 فار جسٹس کے جنرل کاؤنسل گربتوت سنگھ پنو نے کہا ہے کہ خالصتان ریفرنڈم کے حامی سکھ نوجوانوں کو مبینہ جعلی مقابلوں میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 11,000 سے زائد سکھ نوجوان سیاسی عقائد کی بنیاد پر گرفتار کیے گئے۔ احتجاج میں شریک افراد نے کہا کہ ان کا مقصد بورڈ آف پیس کا ممبر بن کر پنجاب کو بھارت سے آزاد کرانا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان میں اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے، رہنماؤں کے مابین آپسی رسہ کشی، دھڑا بندی کی گونج سندھ اسمبلی تک جا پہنچی۔
MKM के रुकन सिंध असम्बली राना शौकत को पार्टी अरकान की मुबैना धमकी देने वाले PSP ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। MPA शारिक जमाल और MNA महसूद ने जान से मारने की धमकियां दी। राना शौकत राजपूत का इल्जाम, कहा कि तहफ़्फ़ुज़ ना दिया गया तो इस्तीफा दे दूंगा। धमकी लगाने पर रुकन इंजीनियर उस्मान की रुकनीत मुआफ़ी मांगने तक मुअत्तल। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि अराकीन की जिंदगी की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। ऐवान में पुलिस तलब। PTI रहनुमाओं का रमज़ानुल मुबारक में हर किस्म के एहतजाजी तहरीक मौखर करने का मुतालबा। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं ने खत लिख दिया। सदर ममलिकत के बानी PTI से मुतालिक जेल बयान पर PTI रहनुमाओं की शदीद मजम्मत। बानी PTI की जेल में बावकार क़यादत को सराहा। खत में हुकूमत से मुतालबा किया गया कि हुकूमत बानी PTI के सेहत पर सियासत बंद करे, पार्टी को असर नौ मुनज़्ज़म करके कारकुनान को मुतहरिक करने की हिदायत, महंगाई, बेरोजगारी, दहशतगर्दी और करप्शन जैसे मसाइल उजागर करने पर जोर। वफाकी हुकूमत की तरफ से बानी PTI से डील या ढील की खबरों की तरदीद। बानी को बैरून मुल्क या बनी गाला मुंतकिल करने की कहीं कोई गुफ्तगू नहीं हुई। मुमकिन है कि सहूलतों के हवाले से बानी PTI को अप्रोच किया गया हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा मार्केट में प्रोडक्ट रखने के लिए डील की अफवाहें फैलाई जाती हैं। डील की बातें करके ये अपनी दुकान खुली रखना चाहते हैं। उन लोगों को वतन अजीज है या एक शख्स बोले हम यहाँ से चले जाएंगे मगर वतन ता क़यामत कायम रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नौकरी खतरे में है। नौकरी बचाने के लिए सुहेल आफरीदी ने रिहाई फोर्स का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI के दरख्वास्त पर ट्रायल कोर्ट को हरजाना केस में कार्रवाई से रोक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हरजाना केस पर सुप्रीम कोर्ट में बानी की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए हैं कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ के दिफा ख़त्म करने से पहले 2 तारीखों पर बानी का ज़ख्मी होना तस्लीम किया। ज़ख्मी होना तस्लीम करने के बाद हक़ के दिफा कैसे ख़त्म किया जा सकता है? मुक़दमे में दूसरे फरीक को नोटिस कर रहे हैं। वफाकी आईनी अदालत का अहम फैसला, तामीराती कामों पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से टैक्स आयद करने को कानूनी करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट के खिलाफ अपीलें खारिज। जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला तहरीर किया। अदालत ने कहा कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद सर्विसेज पर टैक्स आयद करने के अख्तियार सूबों के पास है। वफाकी हुकूमत सिर्फ अशिया पर टैक्स लगा सकती है। 27वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट कवानीन को आईनी बुनियादों पर कलअदम करार नहीं दे सकती। आईनी तशरीह का इख्तियार मखसूस फोरम तक महदूद कर दिया गया। हुकूमत को भी अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक ने फैसला सुना दिया। सर्विस मीटर में वफाकी हुकूमत की अपील ज़ायदुल मियाद करार देकर खारिज। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि हुकूमत कोई अनोखा साइल नहीं, इसे भी आम शहरी की तरह कानून मानना पड़ेगा। रियासत शहरियों से नौ कानून मनवाती है लेकिन खुद बहाने बनाती है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस मीटर में ताखीर मुआफ करने की हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत इजलास इंफॉर्मेशन डोमेन के जामे प्लान ऑफ एक्शन की बाज़ाबिता मंजूरी दे दी गई। मंजूर शुदा जामे प्लान ऑफ एक्शन को RNAP सेक्रेटरीट के जरिए वफाकी हुकूमत को इरसाल किया जाएगा। अमल दरामद की पेशरफ्त का सहमाही जायजा लेने और बाकायदा रिपोर्टिंग का निज़ाम भी कायम किया जाएगा। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मजबूत और मरबूत कौमी बयानिया वक्त की अहम ज़रूरत है और यही दुश्मन के बयानियन का मौसर तोड़ साबित हो सकता है। हुकूमत सिंध कौमी सलामती, अमन इस्तेहकाम और समाजी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए भरपूर ताउन जारी रखेगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च को तलब करने का फैसला। वजारत पार्लिमानी उमूर ने इजलास बुलाने की समरी सदर ममलिकत को इरसाल कर दी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। ज़राए का दावा, सदर के खिताब के बाद नए पार्लिमानी साल का बाकायदा आगाज हो जाएगा। मुश्तरका इजलास में कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान शरीक होंगे। खिताब में हुकूमत की आइंदा साल की पॉलिसी, तरजीहात और कानून साजी के एजेंडे का खाका पेश किए जाने का इम्कान है। पंजाब में कम उम्री की शादी पर मुकम्मल पाबंदी की तैयारी कर ली गई। नया ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली पहुंच गया।
18 साल से कम उम्र की शादी जुर्म करार देने का फैसला। कम उम्र निकाह रजिस्टर करने पर 1 साल कैद और 1 लाख जुर्माना होगा। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट ऑर्डिनेंस पंजाब असेंबली इजलास में पेश करने का फैसला। चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर 5 से 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। 1929 का पुराना चाइल्ड मैरिज एक्ट मंसूख करने का भी फैसला कर लिया। इस्लामाबाद में माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फरोग के लिए बड़ा इकदाम। इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसों के डिपो और चार्जिंग सेंटर का इफ्तिताह। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बस में सफ़र के सहूलियात पर तफसीली ब्रीफिंग हासिल की। खिताब में कहा, मंसूबे की कामयाबी तकमील पर पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। रोज़ाना 1,25,000 शहरी इलेक्ट्रिक बसों में सफ़र कर रहे हैं। मुसाफिरों की तादाद को 2,50,000 यौमिया तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। तलबा और तालिबात के लिए मखसूस रूट्स का खुसूसी ख्याल रखा जाएगा। मंसूबे को गूगल के साथ इंटीग्रेट किया गया है। पेशावर में ISPR विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 कामयाबी से जारी। कोर कमांडर पेशावर की तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी मामला, दरपेश चैलेंजेस और मिल्की दफाई से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू। तलबा ने पाक फौज की कुर्बानियों, पेशावराना महारत और मार के हक में दुश्मन के खिलाफ जुर्रत और इस्तकामत को सराहा। तालिबान ने डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के मुस्बत बयानी के मुहाफिज बनने का अज़्म जाहिर किया। तालिबान ने सिक्योरिटी मसाइल पर कोर कमांडर की तफसीली आगाही हासिल की, जबकि प्रोग्राम के इनेकाद पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के हमरा G6 रमज़ान बाजार का दौरा। मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना। रमज़ान बाजारों में अशिया के मयार और कीमतों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मिलावट और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले इज्तनाब करें। वफाकी वज़ीर के मीडिया से गुफ्तगू बोले, अवाम को मुनासिब नरखों पर मयारी सब्जियाँ और फल फराम किए जा रहे हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ज़ायद कीमतें वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान में भी सोने की निर्ख बढ़ गए। बैनुल-अक़वामी बिलियन मार्केट में फी औंस सोने की कीमत $25 के इजाफे से $5,037 की सतह पर आ गई। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत में 2,005 रुपये और 10 ग्राम सोने की कीमत में 2,144 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड। फी तोला सोने की कीमत 5,26,462 रुपये और 10 ग्राम सोने की कीमत 4,51,356 रुपये की सतह पर पहुंच गई। थाना तरनौल के इलाके में इस्लामाबाद पुलिस का ग्रैंड सर्च ऑपरेशन। 570 अफराद और 165 घरानों की चेकिंग। 148 मोटरसाइकिलें और 26 गाड़ियां चेक। 16 अफगान शहरियों समेत 51 अफराद को जांच पड़ताल के लिए थाने मुंतकिल किया। ऑपरेशन SP सदर जोन काजिम नकवी की ज़ेर सदारत किया गया। जराइम के सद्देबाब के लिए जिला भर में सर्च ऑपरेशन के अहकामात। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि चेकिंग के दौरान ताउन करें। किसी भी मशकूक सरगर्मी के इत्तला पर फौरी तौर पर कार्रवाई होगी। तालिबान रजीम के आमराना इक़्तिदार में ख़वातीन का मुस्तक़बिल तारीख। साबिक़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सख्त तनक़ीद। बैनुल-अक़वामी जरीदे फॉरेन अफेयर्स में शाया होने वाले अपने मज़मून में हिलरी क्लिंटन ने कहा कि अफ़गान रजीम ख़वातीन पर जुल्म और सितम की आलमी अलामत बन चुका। इक़्तिदार पर काबिज़ तालिबान रजीम ने अफ़गान ख़वातीन को सियासी, समाजी और माशरती ज़िंदगी से तकरीबन मुकम्मल तौर पर खारिज कर दिया। अफ़गान ख़वातीन के तालीम और मुलाज़मत पर पाबंदियाँ तालिबान रजीम के इक़्तिदार को तूल देने के हथकंडे हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में काबिज मोदी हुकूमत के मज़मूम अज़ाइम आश्कार। पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर मोदी हुकूमत के इक़दामात पर नए सवालात उठने लगे। भारतीय अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर में मजीद 43 नई चौकियां कायम की गई हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज फोर्सेस की हर चौकी में 25 एहलकार तैनात किए गए हैं। काबिज भारतीय फोर्सेस ने 26 चौकियां कश्मीर डिवीज़न और 17 जम्मू डिवीज़न में कायम की हैं। भारतीय सेंट्रल रिजर्व फोर्स ने इन ठिकानों के लिए खास साजो सामान भी मोदी हुकूमत का इंतहा पसंद हिंदुत्व एजेंडा। भारतीय जामियात में तालीमी आज़ादी पर कदगन। भारतीय जरीदे द वायर के मुताबिक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नई दिल्ली में मुनक़दा कॉन्फ्रेंस पर
शदीद सियासी दबाव देखने को मिला। तालीमी इदारों में सेंसरशिप मामूल बन गई। भारत में ज़ात, अक़लियतों के हुकूक, कौम परस्ती या रियासती तशद्दुद पर तनक़ीदी नुक्ता नज़र को सियासी तौर पर मुतारिक करार दिया जाता है, जबकि इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च जैसे अवामी फंडिंग इदारे भी हुकूमत की सियासी बयानिए को तरजीह देने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एडहॉक सदर मोइनुद्दीन अहमद वानी ने कप्तान इमाद भट्ट पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। हॉकी की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात का ऐलान। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड से कबल तरबियती कैंप फौरी तौर पर शुरू करने का फैसला। उन्होंने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद कहा है कि तमाम फैसले शफाफियत और मेरिट की बुनियाद पर हों। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले का आगाज कल से होगा। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल आएंगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मुकाबला शाम 6:30 बजे कोलंबो में होगा। शदीद बारिश और गीली आउटफील्ड की वजह से कौमी क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन मनसूख हो गया। कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच में भी बारिश की पेशगोई है। अगर बारिश के बायस दोनों टीमों के दरमियान मैच ना हो सका तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया जाएगा।